right? Today we are going to start a new tense, and it's present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. It's a special tense because this tense has two names, you know. One it's present, another is continuous or progressive one. So see that now here's a contrast between two tenses. One is present perfect tense, which we have learnt, and it actually tells us the nature of present perfect tense is what? That it actually, you know, tells about the finished action most probably. While present perfect continuous tense is concerned, when you have added continuous or progressive to present perfect, it means here you find what? Most probably or largely the progressive or continuous action in this tense. So these two tenses are very important in contrast and difference. So we'll try to learn them both to complete, and then we come to solve the exercise that I gave you yesterday. Have you solved that exercise, please? If you solved, it will be easier to understand or to, you know, discuss here on the board. And if you haven't solved it, it will really create the big problem. So we are here to learn now present perfect continuous tense. I don't talk more about, you know, any extra thing because we have very short time, and in this time we'll try to learn what? Present perfect continuous tense. So here I'm going to tell you, okay? Let's see. Yes. So dear student, is I am asked by some students that sir, do it with one hand. Sometimes students teach and guide us. Here it is, I think now visible. Okay. This is right. Right, please. Now look at the tense we are going to learn, and present perfect continuous tense. As I've already told you that it is you know, very special tense in sort of two names, you know. One is perfect, another is continuous or progressive. Dear students, continuous and progressive is the same thing, okay? Because progressiveness also tells us about the continuity in the action of tense. So here we have the formation of the structure at the beginning, like subject, have, has, been plus verb ing. Because you know, your progressive tenses can never be made unless you have the verb of be in the sentence. ओके तो आप देखें आपका प्रोग्रेसिव टेंस और कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं बनता, वो कभी भी कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा जब तक आप उनके साथ बी का वर्ब ऐड नहीं करोगे। तो बी के वर्ब देखो इज, एम, आर, वो तो हम सिंपल प्रोग्रेसिव में हमने ऐड किए। बेटा इज, एम, आर जो है वो हमने कहाँ ऐड किए, कौन से टेंस को बनाने के लिए हमने ऐड किए, वो तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट जो है वो प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल करने के लिए किए। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसके लिए जो बी का वर्ब होता है वो बीन होता है। कौन सा वर्ब होता है? वो बीन होता है। बेटा देखो ये बीन जो है वो इसका वर्ब है। अब स्ट्रक्चर दी हुई है बहुत आसान, और मैं ये पढ़ा के हर टाइम आपको ये नोट्स भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर। प्लीज आप भले देखना कहीं भी आपको ऐसी कलेक्शन या ऐसी कंपोजिशन या इस तरीके से जो पैटर्न नोट्स का बनाया हुआ है वो आपको प्लीज नहीं मिलेगा। बुक्स में हर चीज काफी लिखी हुई है गूगल पे वगैरह पे, तो लेकिन आप इन चीजों को मतलब बेहतर नमूने से अपने पास रखें, पढ़ें, डिस्कस करें। ठीक है, तो आप देखो जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हमारे पास आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखो हैव और हैज तो हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ? परफेक्ट टेंस के साथ हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन बीन का जो है वो हमने इजाफा किया है इसीलिए क्योंकि ऊपर परफेक्ट के साथ जो टेंस का दूसरा नाम लिखा हुआ है वो कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, वो प्रोग्रेसिव टेंस है, इसीलिए इधर देखो हमने बीन भी साथ इस्तेमाल कर लिया। तो यानी आई, यू, वी, दे के साथ आपको पता है हम शुरू से जब से हमने टेंसेस स्टार्ट किए तब से वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान एक हार्मनी देख रहे हैं।
कि अगर ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो देखो इनके साथ हम प्लूरल जो है वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्लूरल वर्ब हुआ, ही शी इट, देखो ये सिंगुलर वर्ब हुआ है, देखिए ही शी इट हैज बीन लर्निंग, ये इस तरीके से आपका सेंटेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या क्वेश्चन, सारी स्ट्रक्चर देखो अच्छे नमूने से बाकायदा बॉक्स बनाकर आपको दी हुई है। आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, आप देखो बेटा, यानी आई यू वी दे के साथ हैव बीन वर्किंग गोइंग, ठीक है, ये मैंने दो वर्ब दे दिए। अच्छा, उसके बाद आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दिया हुआ है, इतना टाइम इस पे हम नहीं लेते क्योंकि ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट तो है, जाहिर इंपॉर्टेंट है, पहले हमें स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन तो आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये आपका पढ़ा हुआ होगा जरूर। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर देखो, हैवंट, ये हमने कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म में रखा है, और हैव नॉट बीन वर्किंग या गोइंग देखो हमने इसको फुल फॉर्म में रखा है। इधर ये प्लूरल वाला ऊपर वाला बॉक्स है, देखो ऊपर जो भी बॉक्स है ये बने हुए ये प्लूरल का है, और जो मतलब इनके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है ये सिंगुलर का है, जिस जगह आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं और सिंगुलर वर्ब नजर आ रहा है, तो ये आपका यानी सिंगुलर बॉक्स है बेटा, सिंगुलर की बात हो रही है। और ये देखो मतलब ये भी सिंगुलर की, फर्स्ट वाला जो है वो प्लूरल का है। तो क्वेश्चन जो हम बनाते हैं देखो यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, जब तक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा तब तक इंटरोगेटिव या क्वेश्चन नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है सब्जेक्ट से पहले, भले आप WH से क्वेश्चन करें, भले आप इस्तेमाल करेंगे ना, मिसाल के तौर पर वेयर हैव यू बीन वर्किंग, इधर आप अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हो कि वेयर, देखो वेयर यू हैव बीन वर्किंग, तो क्या मतलब मैंने W से क्वेश्चन किया है, वेयर यू हैव बीन वर्किंग, क्या ये आपका मतलब है इंट्रोगेटिव है? वेयर यू हैव बीन वर्किंग ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्या ये सेंटेंस है? क्या ये सेंटेंस है या सेंटेंस फ्रेगमेंट है? याद है या भूल गए? ठीक है ना, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? नहीं है बेटा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने वो स्ट्रक्चर ही नहीं बनाई है, ये आपका सेंटेंस भी नहीं है, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो पूरा होता है, आप फुल स्टॉप वगैरह दें उस सेंटेंस के फिर चलो सेंटेंस होता, लेकिन वेयर यू हैव बीन वर्किंग भले हम फुल स्टॉप देंगे, लेकिन आप देखें ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, और डिपेंडेंट क्लॉज तब तक अपनी मीनिंग मुकम्मल नहीं देता जब तक उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, तो ये एसएफ हो जाएगा आपका, एस नहीं होगा, और जब तक आप इसको इंट्रोगेटिव नहीं करेंगे प्रॉपरली तब तक ये आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। आपको मैंने उस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कितनी अच्छी चीजें पढ़ाई, फ्रेजेस को कितना अच्छा पढ़ा हमने, इसी तरीके से मेरा दिल करता है कि मैं आपको जो है वो टेंसेस भी इसी तरीके से पढ़ाऊं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये टेंसेस किस तरीके से लग रहे। ठीक है, तो अब ये आपका सेंटेंस नहीं है, ये ऐसे हो जाता है, हम इसको काटते हैं। अगर आप बेटा इसको इंट्रोगेटिव बनाते हो तो कई स्टूडेंट ये समझते हैं ना कि WH वाला वर्ड लगने से ही जो है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है, ऐसा नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। भले आप कोई सिंपल क्वेश्चन करें तो भी देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं, ठीक है, देखो तो भी आप देखें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आपके लग रहे हैं, लेकिन आप अगर मतलब WH से करना चाहते हो तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करने होंगे। देखो ये हमने इस्तेमाल कर लिया, वेयर हैव यू बीन वर्किंग, अब आपका सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, अब आपका दुरुस्त है। नेगेटिव अगर में बेटा देखें, हैव या बीन के बीच में देखो नॉट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या हैज नॉट बीन, देखो हैज नॉट बीन के दरमियान नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख ले, क्योंकि कभी इसमें एमसीक्यू इस तरीके से भी आ जाएगा, किस तरीके से नेगेटिव इस तरीके से हो जाएगा, देखो हैज बीन नॉट, ठीक है, कभी इस तरीके से देगा आप नेगेटिव तो ये भी गलत है, हैज बीन नॉट देखो ये गलत है, या कभी आपको इस तरीके से दे सकता है नॉट हैज बीन, तो मतलब एक प्रेशर होता है, टेस्ट होता है ना, तो जब टेस्ट होती है, जब प्रेशर होता है तब हमें मतलब सारे जवाब एक जैसे नजर आते हैं, हमें लगता है कि सब सही है, लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारे ऑप्शन सही नहीं होते। जैसे ये इंग्लिश के अंदर एक कहावत है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड,
तो मतलब ये ऐसा नहीं होता, सब सही नहीं होते। तो ये बेटा देखो आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी आपको जो राइट ऑप्शन रखना पड़ेगा। जो ये पड़ी है स्ट्रक्चर के अंदर, इनका इनकी थोड़ी सुपरफिशियली स्टडी करेंगे तो भी आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपरली हो जाएगी। ठीक है, अब आप ऊपर जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, ऊपर देखना बेटा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेलिंग है, ये वही स्पेलिंग है देखो जो हमने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ी थी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेलिंग वही स्पेलिंग है जो हमने कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ी थी, और इतना इसमें कुछ भी नहीं है। ये आप खुद नोट कर लेना बेटा, ये जो राइटिंग है फिर यानी मिट जाती है, तो आप इसको नोट कर लें। अच्छा, तो देखें मतलब स्पेलिंग की बात है, स्पेलिंग की बात, एक मिनट बेटा, चलो ये नोट कर लेना। आपने सुना होगा कि हम किस तरीके से बनाते हैं इंट्रोगेटिव, किस तरीके से बनाते हैं नेगेटिव। जो बना हुआ है वो सही है, लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस में आता है, अगर हमें पता नहीं होगा तो देखो वो हमारी गलती हो जाएगी। आप उसको सही नमूने से प्लीज पढ़ लेना। ठीक है ना, स्ट्रक्चर जो होती है वो उसको दुरुस्त नमूने से आप ये नहीं करें। अच्छा, तो हम देखो बात कर रहे थे यानी, सॉरी, यानी बात कौन सी कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे। हाँ, तो प्रेजेंट यानी ये बात कर रहे थे इसकी, इनके जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह जो थे, या जो हम मतलब किस तरीके से आईएनजी फॉर्म जो वो ऐड करते हैं, वो हम बात कर रहे थे। ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे थे। तो बेटा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्पेलिंग का मसला होता है। अब स्पेलिंग के अंदर आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि मोस्ट वर्ब्स जो होते हैं आईएनजी ऐड करते हैं, आईएनजी इंग लगाते हैं तो वो प्रोग्रेसिव बन जाता है। जैसे यानी थिंक के आईएनजी इंग लगाया, थिंकिंग हो गया। फिक्स से तो आईएनजी इंग लगाया, फिक्सिंग हो गया। लेकिन वही बात जो हमने पहले आपको बताई थी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, कि जिन वर्ब्स के आखिर में ई इस्तेमाल होता है तो ई ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे चेंज इस्तेमाल, चेंज देखो आईएनजी इंग इस्तेमाल किया है, ई नहीं आएगा। कोई ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, मतलब दो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। एक ऑप्शन CHANGE, मतलब CHANGEING आएगा तो गलत हो जाएगा, ई आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। हायर पढ़ा है देखो, ई आपने ड्रॉप की है। फिर देखो IE अगर आता है, बेटा देखो कितना कॉम्प्रिहेंसिव हमारा चार्ट बना हुआ है। अगर IE आता है तो आई चेंज हो जाएगा वाई में। ठीक है, जैसे आप देखो लाई पढ़ा है, टाई पढ़ा है, तो मतलब आई चेंज हो गया वाई में, और वो आई देखो आखिर की स्पेलिंग जो ING इंग एड कर रहे हैं उसमें है भी नहीं। जो आपको हम भेजेंगे नोट, ये भी मैं भेजता हूँ। अच्छा, वर्ब्स एंडिंग इन यानी कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, डबल लास्ट लेटर, ये जो लास्ट लेटर होता है वो हमें डबल करना होता है। ये सारे जो है वो वर्ब्स ऐसे नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कुछ लिखकर कि सर देखो इनमें तो नहीं होता। बेटा ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको कहते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ब्स कहते हैं। ये थोड़ी डेप्थ वाली बात है। अब वो फिर वर्ब्स की प्रोनाउंसिएशन हमें करनी पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा कि स्ट्रेस्ड कौन से वर्ब्स हैं और अनस्ट्रेस्ड कौन से वर्ब्स हैं। लेकिन ये मतलब काफी कॉमन वर्ब्स होंगे, उनके साथ ये ऐसा होता है। जैसे प्लान होता है देखो, प्लानिंग, PLANNING, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम उनको ING फॉर्म ऐड करेंगे तो ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा। रन होता है देखो, रनिंग होता है तो भी हम ये प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से यानी ये आपकी स्पेलिंग हुई। और इतना मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो बेटा देखो ये यूजेस है जो आपको पढ़ना पड़ेंगे या उनको समझना बहुत जरूरी है। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूजेस के अंदर देखो ऊपर लिखा हुआ है, और इधर एरर्स भी, मिस्टेक्स भी दी हुई हैं। कनेक्ट्स प्रेजेंट प्लस पास्ट। देखो अब इधर एक बात समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेचर ऑफ एक्शन था, उसका जो बेसिक था वो ये था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हमने इस्तेमाल किया। किस सेंस में, किस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिंक, उसका रिलेशन, उसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो पास्ट से होती है।
यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इस्तेमाल होता है ऐसे एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में शुरू हुए और मतलब प्रेजेंट में या तो फिनिश हो गए या प्रेजेंट के अंदर एक आधा ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यू भी रहा, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके बताया, परसों भी बताया था। तो देखो उसका भी लिंक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिंक या उसकी कनेक्टिविटी या अटैचमेंट या रिलेशन जो था वो भी यानी पास्ट से था। और ये जो है मतलब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो अब अभी पढ़ रहे हैं उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कनेक्ट्स प्रेजेंट प्लस पास्ट, यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट करता है। लेकिन बेटा देखो यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है ना उसका ज्यादा जो फोकस होता है उसके एक्शन का, वो फोकस ऐसा होता है कि वो कंप्लीशन की तरफ जाता है एक्शन, उसका एक्शन फिनिश की तरफ जाता है, क्योंकि वो परफेक्ट टेंस है ना तो वो फिनिश की तरफ एक्शन जाता है, वो कंप्लीशन की तरफ एक्शन जाता है। देखो उसके अंदर जो नेचर ऑफ एक्शन होती है वो फिनिश्ड वाली ज्यादा होती है, वो कंप्लीशन वाली ज्यादा होती है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है जिसको हम कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव कहते हैं, उसकी जो नेचर ऑफ एक्शन होती है ना उनमें बेटा देखो कंटिन्यूटी होती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है, या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इन दोनों टेंसेस को शुरू में आप देखें कि एक के अंदर कंटिन्यूटी और दूसरा जो है वो मतलब परमानेंट और रूटीन वाला एक्शन बता रहा था, वो कंटिन्यूटी नहीं शो करा। तो इसी तरीके से इन दोनों टेंसेस के अंदर आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि कंटिन्यूस टेंस जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस वो कंटिन्यूटी ज्यादा शो करता है, ठीक है ना, उसके अंदर कंटिन्यूटी होती है। तो अब आप देखें यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम देखते हैं स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, यानी ऐसा एक्शन ये भी पास्ट में स्टार्ट होता है। कंटिन्यूस टेंसेस बेटा जो भी होते हैं वो पास्ट में शुरू होते हैं फिर कंटिन्यू प्रेजेंट में रहते हैं। तो आप देखें स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, मिसाल के तौर पर वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। अब इसमें भी देखो यानी 4 और 6 इस्तेमाल करते हो बेटा, इसके अंदर भी यानी हम जो इस्तेमाल करते हैं क्या, यानी 4 और 6 जो है वो सॉरी सिंस 4 भी हम इस्तेमाल करते हैं और सिंस का यूज हम इनमें भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 4 और सिंस इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। 4 हमें मुद्दत और ड्यूरेशन की बात बताता है, ठीक है, जबकि सिंस जो हमें इस्तेमाल बताता है ये जो स्पेसिफिक पॉइंट होती है किसी भी एक्शन के स्टार्ट होने की, ठीक है, उसके साथ लगाने के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो 4 और सिंस हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें जो माजी में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months, हम जो वो 6 महीनों से मतलब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस्तेमाल करें कि वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months, बेटा इधर कुछ दिया होगा, मैं आता हूं आपको मिस्टेक्स के अंदर भी बताता हूं। अब ये गलत है बेटा, देखो ये गलत है, यानी कौन सा गलत है, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे 4 और सिंस लगाकर तो ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आप 4 और सिंस नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि आई एम टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर, आई एम टीचिंग यू फॉर 1 hour, ठीक है, तो देखो आई एम टीचिंग यू फॉर 1 hour, देखो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ मैं 4 या सिंस इस्तेमाल कर रहा हूं। वो 4 और सिंस जो आप इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर 4 और सिंस इस्तेमाल हो रहा है और कंटिन्यूस का एक्शन है तो आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंपल कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ अगर आप 4 और सिंस इस्तेमाल करेंगे ना वो एरर हो जाएगी। तो देखो हमने 4 या सिंस इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा जो टेंस है बेटा ये आप खुद नोट करते जाएं, फिर ये राइटिंग जो मैं अंडरलाइन करता हूँ या अलग जो लिखता हूँ देखो वो मिट जाती है। अच्छा इसी तरीके से आप देखें सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, देखो मतलब हो गए कंटिन्यू है हमारा एक्शन, इसीलिए हमने जो इस्तेमाल किया हैव बीन राइजिंग, ठीक है। आई बीन कुकिंग डिनर, देखो ये भी मतलब यानी कंटिन्यूस जो वो शो हो रहा है। तो आप देखें मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो डिफरेंस है बेटा वो डिफरेंस ये कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हो और अभी तक जारी हो। फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है आई बीन कुकिंग डिनर और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है आई हैव कुक्ड डिनर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ आई हैव बीन कुकिंग डिनर और दूसरा है आई हैव कुक्ड। इसका मतलब कि ये एक्शन आपका पास्ट में फिनिश्ड हो चुका है, ये फिनिश्ड हो चुका है, खाली इसकी रिजल्ट है, नतीजा है या जो चीज कुकिंग हुई है वो हमारे सामने पड़ी है कि देखो आई हैव कुक्ड, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से होगा
कि सिर्फ उसका उसकी रिजल्ट और इफेक्ट जो वो सामने, लेकिन ये जो टेंस है, ये जो एग्जांपल जो मैंने अभी यानी रेड कलर से लिखा है, ये एक्शन फिनिश्ड शो करता है। आप देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है और ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल्स को आप कंपेयर करें, आपको इधर नजर आएगा कि ये जो है वो देखो प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस एक्शन है, ठीक है। आई हैव बीन कुकिंग डिनर, मतलब ये एक्शन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, ये अभी तक भी कुकिंग जो है वो चल रही है। लेकिन इधर देखो आई हैव कुक्ड, यानी ये कंप्लीट हो चुका है, यानी फिनिश्ड हो चुका है, यानी जो कुकिंग हुई है वो पास्ट में ही मुकम्मल हो चुकी है। तो आप देखें ये जो है ना मेजर डिफरेंस है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, यानी आई हैव बीन कुकिंग डिनर, आई हैव कुक्ड, देखो इनमें ये फर्क जो है वो दोनों के अंदर है। अब आते हैं सेकंड पे, देखो कॉमन एक्सप्रेशंस आर प्रोग्रेसिव एक्शंस। कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जिनमें हम जो इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन के अंदर, वही बात है ऊपर यूज लिखा हुआ है कि आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, इट हैज बीन सॉरी ये नहीं इट हैज बीन स्टडीइंग सिंस 5, इट नहीं इस्तेमाल करें आप, इधर जो है वो ही इस्तेमाल करें, या कोई इट तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा बेटा, ये करेक्ट कर देना। आप क्या है जो करेक्शन में करवाता हूं बोर्ड पे या मतलब कोई चीज बताता हूं, वो खुद लिखते नहीं हो या नोट नहीं करते हो, फिर मतलब आपका एकदम सवाल आ जाता है कि सर ये तो गलत है, ठीक है, बड़ा एरो लगा होता है, देखो सर इट लिखा है इधर, तो करेक्शन करवाता हूं तब तो करते नहीं हो, लेकिन यह ध्यान नहीं होता है शायद, इस वजह से फिर आप बाद में मैसेज, अब इसका मैसेज करेंगे कि सर देखो इट हैज बीन लिखा हुआ है, तो बेटा मैंने करेक्शन करवा दिए। ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 5, देखो तो ये देखें मतलब कंटिन्यूटी है, या शी हैज बीन एक्सरसाइजिंग अ लॉट लेटली या रिसेंटली, तो देखो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेटली और रिसेंटली, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया वो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो थीम है, जैसे मैंने कल उसका भी थीम बताया, इसका जो थीम और जो कॉमन है वो ये कि इसके अंदर कंटिन्यूटी वाली बात ज्यादा होती है, कंटिन्यूस एक्शन होता है जो कि चलता रहता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग, देखो आई हैव बीन टीचिंग, यू हैव बीन लर्निंग, ओके, फॉर 1 आवर, फॉर हाफ एन आवर, तो ये देखो कंटिन्यूटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और फोर और सिंस इसमें इस्तेमाल होता है। फोर और सिंस का जो यूज होता है वो सेम होता है जैसे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया कि फोर कैसा टाइम हो और सिंस कैसा टाइम हो, वो सेम यूज होता है। अब देखो तीसरी बात ये मैंने आपको, ठीक है बेटा, स्टेटिव वर्ब्स की बात, या बेटा ये देखें चीजें, आप पढ़ें इनको, कहीं भी आप भले देखें, आप नोट्स भी होंगे आपके पास, बुक्स भी होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन इस तरीके से मतलब एमसीक्यूज तो आपको बने हुए मिलेंगे, लेकिन आपके पास यानी एक जो मतलब होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए या एक बुनियादी चीजें जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो नहीं होती। तो हमने हर चीज को देखो कॉन्सेप्चुअली रखा है, उसके बाद एमसीक्यूज या जो चीजें होती है वो बाद में डिस्कस करते हैं। बेटा स्टेटिव वर्ब्स आपको याद होगा जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था उसके अंदर मैंने स्टेटिव वर्ब्स लिख के आपको दिए, वो जो फर्स्ट पेज भेजा है ये मैंने आपको टेंसेस का चौथा पेज है, ये जितने टेंसेस है हर एक का अलग बना के मैंने भेजा है ग्रुप्स के अंदर, आप देखना। तो स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, जो स्टेट शो करें वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो माइंड की कंडीशन या किसी भी हमारे ऑर्गन या सेंस की कंडीशन बताएं, कोई एक्शन ना बताएं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो बेटा कंटिन्यूस टेंसेस में नहीं इस्तेमाल होते, वो प्रोग्रेसिव टेंसेस में नहीं इस्तेमाल होते, वो गलत हो जाते हैं। तो आप देखें आई हैव बीन नोइंग, ओके, मुझे फॉर 2 इयर्स, आप देखें आई हैव बीन नोइंग लिखा हुआ है, बेटा ये गलत है क्योंकि ये नो जो है स्टेटिव वर्ब है, तो इसके ऊपर देखो मैंने लाइन लगा दी है, एरर है बेटा, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये देखो मिस्टेक है, तो आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा। लेकिन अगर भले प्रोग्रेसिव की मीनिंग आपको निकालनी हो, भले कंटिन्यूस की मीनिंग निकालनी हो, लेकिन उसकी कंटिन्यूस वाली मीनिंग के लिए भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना होगा। जैसे आई हैव नोन मुझी फॉर 2 इयर्स, और ऊपर वाला सेंटेंस ये इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का एक ही है, क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं होता प्रोग्रेसिव में, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और फोर और सिंस हमने लगाया, अब आपको मतलब और मीनिंग सेम मिल रहा है। आई हैव नोन मुझी फॉर 2 इयर्स, हमारा ये राइट है, इसी क्योंकि ये नो जो इस्तेमाल ही नहीं होता। मैंने स्टेटिव वर्ब्स आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस वाले फर्स्ट पेज में दे दिए, क्योंकि वहां मैंने बताया कि कंटिन्यूस टेंसेस में ये स्टेटिव वर्ब्स इस्तेमाल नहीं होते, इनको मैंने दूसरा नाम दिया था नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। अच्छा फिर सेकंड सेंटेंस देखिए बेटा, अच्छा ही हैज बीन लाइकिंग दिस
बुक ऑल हिज लाइफ, बेटा ये भी गलत है क्योंकि लाइकिंग जो है वो स्टेटिव वर्ब है, इस्तेमाल नहीं होगा। ही हैज लाइक्ड दिस बुक ऑल हिज लाइफ। अब इधर भी देखो हमने ये इस्तेमाल किया है, स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग दिस, देखो स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड होगा क्या, स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड ये होता है, तो इसीलिए ये मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये नहीं ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो वो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नोट देखिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम आते हैं मिस्टेक्स पे और एरर पे आते हैं। देखो बेटा नोट भी लिखा हुआ है, इस नोट को देखें, नोट में क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ कंप्लीशन। Look at the hard work, look at the sincere efforts I have made to make you greater, conceptual, okay, confident students. All of these conditions and uses have been said to make my students very confident, okay, very strong in the structures. And that's why, you know, all of the things are connected, are given. And I think it's my personal opinion, you have not been taught tenses or any of the other areas of grammar in such way as I have been trying. I'm not, I don't claim to have, you know, absolute knowledge, but at least, you know, it's the personal, you know, hard work and effort to dedicate and to project and enhance our students' success easier one. Okay, that's actually the contribution we have been making to make our students, you know, stronger and more confident one. So dear students, here actually the conclusion of entire concept of present perfect continuous tense and present perfect. So look at the contrast and difference concisely made here. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ कंप्लीशन। देखो ये कीवर्ड है, सॉरी ये जो वो आप देखें ये कीवर्ड है कौन सा, कि ये कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल होता है, कंप्लीशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। टू से दैट एन एक्शन हैज जस्ट बीन फिनिश्ड, मतलब अभी अभी फिनिश्ड वाली बात होती है जो मैंने आपको पहले बता दी। आर टू टॉक अबाउट इट्स रिजल्ट, मतलब यह पास्ट में खत्म हुआ एक्शन तो रिजल्ट प्रेजेंट में उसकी होती है, या अभी अभी मुकम्मल हुआ है। इसका एक यूज जो सिर्फ होता है सिंस और फोर हम लगाते हैं कि वो अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है, वो इसका यूज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन उसमें भी देखो यानी हमें कंप्लीशन वाली बात होती है और लॉन्गर एक्शन होता है, वो आपका हो सकता है। जबकि आप देखें आर टू टॉक अबाउट रिजल्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, देखो द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव emphasize the continuation of the activity, माना वो एक्शन जिसके अंदर कंटिन्यूएशन की बात है, कंटिन्यूएशन की बात होगी तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब इनके भी कंपेयर दोनों के एग्जांपल दिए हुए, देखो वहां मतलब दिया है कैसे क्या सब कुछ, देखो थोड़ा पढ़ो तो सही, देखो तो सही। अब देखो बेटा, आई हैव बीन रीडिंग योर बुक, आई हैवंट फिनिश्ड इट, देखो एग्जांपल मीनिंग भी, ये जुमला लिखकर इसका मतलब इधर दे दिया गया, I have been reading your book, I haven't finished it, ठीक है ये देखो। और फिर देखो I have read your book, सेम लिखा हुआ है I have finished it। तो ये फर्क होता है, मतलब जो ज्यादा जो फर्क होता है, जो विजिबल जो डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, वो ये ज्यादा डिफरेंस इन दोनों के दरमियान होता है। अब इधर आए, देखो ये जो मतलब एरर्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो होती है बेटा, इन मिस्टेक्स को देखें। यानी सबसे ऊपर लिखा हुआ जो हमने पढ़ा है रॉन्ग वर्ब होता है, आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द लेसन, देखो ये ऊपर गलत है और सही हमने किया है आई हैव अंडरस्टूड द लेसन। मैंने आपको अभी बताया कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स बेटा प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होते, इसीलिए हमारी ऊपर जो इसमें एरर है रॉन्ग वर्ब की एरर है, यानी वर्ब हमने अंडरस्टैंडिंग जो लिखा है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद रॉन्ग टेंस की बात की गई है, देखो सेकंड जो है रॉन्ग टेंस, इसमें जो एरर्स होती हैं वो एरर्स, एग्जांपल्स, सिचुएशंस, कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंस, कंपैरिजन, ठीक है बेटा, वेरी कंसाइजली आई हैव सेड टू make you understand all of these aspects, okay, and this is what we have done a lot, and hopefully you also do your hard work in such way, okay, as I have done to make you understand all the things clearly and cleanly। तो बेटा देखें रॉन्ग टेंस से आई एम वर्किंग हियर सिंस 2000, आई एम हियर, तो इसमें कौन सी गलती है, देखो सिंस 2018 तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फिर कौन सी गलती है, देखो क्या हम फोर इस्तेमाल करें तब हमारा सही होगा क्या बेटा, क्या इधर सिंस की जगह पर फोर इस्तेमाल करेंगे, आई एम वर्किंग हियर फॉर 2018 तब सही होगा, या इसमें कौन सी गलती है, सिंस तो लिखा हुआ है पूरा, लेकिन फिर भी आप देखें एरर की इन्होंने। देखो ऊपर क्या हेडिंग क्या दी हुई है,
रॉन्ग टेंस लिखा हुआ है। तो रॉन्ग टेंस लिखा हुआ है तो हमने आई एम वर्किंग, मैंने अभी आपको बताया कि फॉर और सिंस इस्तेमाल होता है ना, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल ना करें, वो गलत हो जाता है। तो इधर टेंस गलत हुआ है, इधर सही होगा। सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ है ना, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018, अब ये सही है, ऊपर वाला गलत है। फिर देखो रॉन्ग वर्ड होता है, हमसे अल्फाज गलत हो जाते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 3 इयर्स, बेटा सिंस इस्तेमाल होगा जो पॉइंट इन टाइम, जो स्टार्ट पॉइंट जो है ना वो स्पेसिफिक एग्जैक्टली उसका नाम हो, उस टाइम का नाम हो, ठीक है, तब हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। हमें पता हो जो मतलब जो नाम होता है तब हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। या सिंस लास्ट डे हम इस्तेमाल करते हैं, सिंस लास्ट नाइट इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा कोई नाम हो, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट नाइट वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे लास्ट के साथ। तो ये जो बातें बेटा हम बता रहे हैं इनको नोट भी करते जाएं, फिर आपके टेस्ट में या एमसीक्यूज में ये आ जाएं और फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो सही हो रहा है बेटा 4, क्योंकि 3 इयर्स कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, मूवमेंट नहीं है, इसीलिए हमने 4 इसके साथ इस्तेमाल कर लिया। तो ये आपका यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो वो टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके जितने भी यूजेस हैं आप देखें, वो मैंने आपको सारे बता दिए ऊपर से। बेटा देखें, अब मैंने कल जो आपको एमसीक्यूज दिए, ये आपकी स्ट्रक्चर है, देखो यानी स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर देखो ये लिखा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों की स्ट्रक्चर है बेटा। उसके बाद देखो नेगेटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, कि नेगेटिवली वो कैसे इस्तेमाल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अच्छा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के साथ। उसके बाद देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, कि स्पेलिंग मिस्टेक्स में कौन सी आती है बेटा, देखो कॉन्सेप्ट एरियाज तो देखो ना, तो वो कौन सी होती है बेटा, देखो तो वो आपको देगी, बेसिक चीजें सारी हैं। फिर आप देखें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि भाई ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट करता है, और कैसे कनेक्ट करता है देखो उसके ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। और ये इसका यूज सिर्फ एक ही हो रहा है, और वो यूज ये होता है कि ये प्रोग्रेसिव एक्शन जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। वो प्रोग्रेसिव एक्शंस जो पास्ट में शुरू में और अभी तक कंटिन्यूस हो तो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने दे दिया। फिर एरर्स और मिस्टेक्स देखो, इसमें सबसे बड़ी एरर्स और मिस्टेक्स ये आती हैं कि ये जो इस्तेमाल इसको ना करें स्टेटिव वर्ब्स के साथ। स्टेटिव वर्ब्स कौन से, मैंने फर्स्ट पेज पे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पेज है उसी पेज पे मैंने स्टेटिव वर्ब्स आपको लिख के दिए। वो वर्ब्स होते हैं जो मतलब कंडीशन या स्टेट शो करते हैं और एक्शन शुरू ना करें, उसको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखें स्टेटिव वर्ब जिधर भी लिखा हुआ है वो गलत है। उसके बाद देखो नोट दिया हुआ है कि इसमें और उसमें फर्क क्या है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, क्योंकि कंटिन्यूअस जो वर्ड एड हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, इसका मतलब कि इस एक्शन के अंदर, इस वाले टेंस के एक्शन के अंदर कंटिन्यूटी की बात ज्यादा होती है और उसमें फिनिशिंग की बात होती है, जैसे इन एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फिर देखो बेटा ये आपकी एरर्स वगैरह जो है वो ये भी दी हुई है, कि ये एरर्स जो है वो होती हैं, कौन सी इसमें एरर होती हैं वो आप प्लीज उनको क्लियर करना, ठीक है। ये मैं टेंस अलग जो है वो बेटा ग्रुप में भेज रहा हूँ, यहाँ से नहीं ग्रुप में आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना, अलग मतलब मैं अपने जो वो नंबर से ग्रुप में भेज रहा हूँ आपको। तो ये वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कल जो मैंने एमसीक्यूज, अब जो भी टाइम है इस टाइम के अंदर मैं कोशिश करता हूँ आपको एमसीक्यूज जो कल भेजें वो, नहीं तो हम जो वो आज रिव्यू क्लास भी रख लेंगे उसमें भी वो एमसीक्यूज मैं करवा लूंगा आपको, ठीक है ना, वो भी एमसीक्यूज आप बेटा कर लेना। अच्छा अब देखें इसके बाद ये जो एक्सरसाइज थी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एक्सरसाइज थी, ये शायद मैंने ये आपको भेजा था, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब ये हमने सेंटेंसेस आपको भेजे थे, ठीक है ना बेटा। एक्सरसाइज मेरे ख्याल में नंबर ये कुछ थोड़ा इसमें था, एक्सरसाइज नंबर 10 मैंने आपको भेजी थी शायद, हाँ एक्सरसाइज नंबर 10 मैंने भेजी थी। तो अब देखें वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल या प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल से मुराद बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहते हैं, और प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस होता है। तो अब आप देखें नंबर फर्स्ट है, वी ड्राइव फॉर 2 hours एंड नॉट पास अ सिंगल पेट्रोल स्टेशन, ठीक है ना। तो आप देखें वी ड्राइव फॉर 2 hours, तो अब इसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, देखो मतलब इसमें कंटिन्यूटी शो हो रही है,
इसमें बेटा कंटिन्यूटी शो हो रही है, तो आप खुद नोट करना, इसमें होगा वी हैव बीन ड्राइविंग, क्या होगा, वी हैव बीन ड्राइविंग, वी हैव बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स, इसमें ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, वी हैव बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स एंड हैज नॉट पास्ड अ सिंगल पेट्रोल स्टेशन, अभी तक हमने एक भी स्टेशन कंप्लीट नहीं किए, मतलब ये फिनिश वाला एक्शन है, क्या ये कंप्लीशन वाला एक्शन है, इसीलिए बेटा इधर देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, यानी हैज नॉट पास्ट, क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, हैज नॉट पास्ट इस्तेमाल करेंगे, वी हैव बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स एंड हैज नॉट पास्ट अ सिंगल पेट्रोल स्टेशन, तो आप खुद यहां से देखें कि एक के अंदर प्रोग्रेसिव जाहिर हो रहा है और दूसरे में देखो फिनिश वाला हो रहा है, बेटा देखो ये 4 भी लिखा हुआ है, यानी 2 घंटे से ड्राइविंग कर रहे लेकिन अभी तक पेट्रोल स्टेशन क्रॉस नहीं किया है, यानी फिनिश्ड वाली बात हो रही है, इधर एक भी नहीं किया है। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, आई स्टडी रशियन फॉर 4 years बट आई कांट स्पीक इट, यस ओके, आई हैव बीन, देखो ये भी कंटिन्यूटी शो हो रही है बेटा, आई हैव बीन स्टडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना आप, लाइन्स नहीं लिखेंगे, आप ऐसे ही बैठे होंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो इधर जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, आई हैव बीन स्टडिंग रशियन फॉर 4 years बट आई कांट स्पीक इट येट, तो देखो वो मतलब एक्शन तो चल रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब इन्होंने जो सीखा नहीं है। उसके बाद 3 है, शी हैज, ओके, शी हैज नॉट बीन कॉलिंग टू कलेक्ट हर वेजेस फॉर 3 weeks, बेटा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, शी हैज नॉट बीन कॉलिंग होगा टू कलेक्ट और वेजेस फॉर 3 weeks, क्योंकि ये भी कंटिन्यूटी शो हो रही है। अच्छा उसके बाद देखो 4 है, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, बट माय फ्रेंड हैज नॉट कम येट, यहां जो होगा येट देखो फिनिश्ड वाली बात है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि फिनिश्ड वाली मीनिंग थोड़ा आप सोचे, ठीक है ना, हैज नॉट कम येट ये होगा। 5 नंबर में देखें, what on earth are you doing, okay, I never seen such a mess in my life, I have never seen होगा बेटा, इधर देखो फिनिश्ड वाली बात हो रही है तो इधर होगा I have never seen such a mess in my life, बेटा बकाया सेंटेंसेस हम बाद में करेंगे, ओके, तो मतलब टाइम जितना होता है उसमें मैं कोशिश पूरी करता हूँ, एक टेंस भी कंप्लीट करवाया आपको और सेंटेंसेस बाद में भी ये सेंटेंस करवाएंगे, और जो आपको प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअली भले कोई ऐसा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम कर रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।